Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe. Jai Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Rai. Jai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. जय हरि नाम संकीर्तन की जय, विद्वान शिल गुरुदेव की जय, शिल प्रभुपाद की जय। श्री गौर नित्यानंद कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी राधा कृष्ण चंद्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवतम 6th canto, chapter 12, verse 13. Glorious death of Bhutasur. आई हो श्री कीर्ति ऐश्वर्यम आशीष पुरुषस्य जहाँ। आई हो श्री कीर्ति ऐश्वर्यम, आई हो श्री कीर्ति ऐश्वर्यम आशीष आशीष पुरुषस्य जहाँ, आशीष पुरुषस्य जहाँ। भवन्ति एव हि तत्काले, भवन्ति एव हि तत्काले यथा अनीच विपर्जयः, यथा अनीच विपर्जयः। रीडिंग। आयुर्कीर्ति श्री कीर्ति ऐश्वर्य आशीष पुरुषस्य जहाँ। भवन्ति तति तत्काले तथा नीच विपर्जयः।
ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय शिल प्रभुपाद की द्वारा। जय शिल प्रभुपाद की जय। Translation. Just as a person not inclined to die must nonetheless give up his longevity, opulence, fame, and everything else at the time of death. So, at the appointment time of victory, one can gain all these when the Supreme Lord award them by His mercy. Purport. Forward. It is not good to be falsely puffed up, saying that by one's own effort one has become opulent, land beautiful, and so on. All such good fortune is achieved through the mercy of the Lord. From another point of view, uh, no one wants to die, and no one wants to be poor or ugly. Therefore, why does the living entity, against his will, receive such unwanted troubles? It is due to the mercy or losses breathing material. No, due to mercy or chast- chastisement of the Supreme Personality of Godhead that one gains or lose everything material. No one is independent. Everyone is dependent on the mercy or chastisement of the Supreme Lord. Supreme, everything mercy of independent. Everything is independent on the mercy of chastisement of Supreme Lord. There is a common saying in Bengal that the Lord has 10 hands. This means that he has control everywhere in the 8 direction and up and down. If he wants to take everything away from us with his 10 hands, we cannot protect anything with our 2 hands. Similarly, if he wants to bestow if he wants to bestow benediction upon his 10 hands, we cannot factually receive them all with our 2 hands. In other words, the benediction benedictions exceed our ambitions. The conclusion is that even those we do not wish to be separated from our possession, sometimes the Lord forcibly take them from us, and sometimes He swears such a benediction upon us that we are unable to receive them all. Therefore, either in opulence or in distress, we are not independent. Everything, everything, Hare Krishna, forward, everything. Uh, Hare Krishna. Everything is depend on the sweet will of the Supreme Personality of Godhead. जय शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट
ये भागवत कथा सत्र के लिए सब लोग को हार्दिक स्वागत संवर्धना ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित महाराज जी वृंद, वैष्णवी वृंद, हमको ये भागवत कथा सुनने के लिए सुयोग प्रदान किया है। ये कार्यक्रम भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट माध्यम से चल रहा है। घर में बैठकर भागवत कथा सुनते रहेंगे, कंटिन्यू चलता है, नॉन स्टॉप, एक श्लोक के बाद दूसरे एक श्लोक चलता है। इसीलिए सब लोग अपने जो भाग लेते हैं अपने सारे रिलेटिव फैमिली के साथ उसमें भाग लेना चाहिए। ये चांस इतना सुलभ नहीं है सबके लिए जो भक्ति मार्ग तक अभी पहुंचा नहीं है। ऐसा घर में बैठे कर कंटिन्यू चैप्टर वाइज ये भागवत कथा सुनने के जो सुयोग सुलभ सुयोग भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट तरफ से प्रदान किया जा रहा है, ये सुयोग सब स्वीकार करना चाहिए अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने को कृतार्थ करने के लिए। सभी को स्वागत है। आज का जो चैप्टर चल रहा है ग्लोरियस डेथ ऑफ वृतासुर, ये जो ग्लोरियस डेथ ऑफ वृतासुर, ये जो चैप्टर का जो नाम, ये चैप्टर का नाम व्यासदेव या श्रील प्रभुपाद जी क्यों ग्लोरियस डेथ ऑफ भूतासुर रखा, ऐसा नाम क्यों रखा, उसी के संबंध में हम आज का क्लास चर्चा करेंगे। भूतासुर का जो मृत्यु को क्यों ग्लोरियस डेथ कहा गया है। सब लोग तो मृत्यु को फिर मृत्यु में फिर अच्छा मृत्यु बुरा ही मृत्यु, ये संबंध में भी संदेह आ रहा है। मरना तो सभी के लिए दुख है, इधर तो जो मृत्यु का गुणगान किया जा रहा है, कीर्तन किया जा रहा है। जैसे जैसे बैड डेथ गुड डेथ, मरना तो दो तो मरना है, फिर उसमें अच्छाई क्या है बुराई क्या है, ये समझ में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं हमारे जो जगत, जड़ जगत, जड़ जगत, जड़ पदार्थ का जहाँ प्राधान्य है वो जड़ जगत है। उसमें जड़ जगत का ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है उसमें। इधर सूक्ष्म जो वस्तु है, एब्सोल्यूट थिंग्स, उसके ऊपर इतना कोई गुरु तो नहीं देते हैं, उनको कोई मान देखते नहीं। सब भौतिक पदार्थ का ज्यादा ही मान जगत में दिया जाता है। इसी कारण से भौतिक जगत है, उसमें कई प्रकार के सब आदमी है जो पूरे नास्तिक होते हैं। हम देखते हम लोग का भी जो इस शरीर में कष्ट पहुंचने से, थोड़ा सा कष्ट पहुंचने पर हम कैसे होते हैं, ये जो भाव, शरीर में थोड़ा सा कष्ट आने पर जो चित्कार करना, चिल्लाना, छटपटाट होना, ये सब कई आदमी का पास में सब फर्क फर्क होता है, सभी के पास एक ही प्रकार का नहीं होता है। थोड़ा कष्ट आने पर चिल्लाना, रोना, छटपटाते रहना, ये भिन्न प्रकार का होता है। जो फूल जो सब फूल अथिस्टिक होते हैं, नास्तिक होते हैं, उनके थोड़ा कष्ट आने पर क्या होते हैं ना, चिल्लाते हैं, चित्कार करते हैं, या
मालो या बापलो ऐसा ही बोलते रहते, कोई कोई बोलते हैं सब, और ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। अथेइस्ट लोग इतना तक ही बोलेंगे कष्ट आने पर, शरीर में भारी से भारी कष्ट आने पर। जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, सेमी स्पिरिचुअलिटी जिसको कहा जाएगा, थोड़ा सा जिसके पास स्पिरिचुअलिटी ज्यादा नहीं है, उसको कष्ट आने पर क्या करेगा, वो भी चित्कार भी करेगा, चिल्लाएगा, सब वही बोलेगा, बापलो मालो, नहीं तो अपने भाग्यों को निंदा करेगा, या अपने इष्ट देव को निंदा करेगा कष्ट आने पर। लेकिन जो फुल स्पिरिचुअलिस्टी है, प्योर स्पिरिचुअलिस्टी है, डिवोटी है, उनके ऊपर कुछ कष्ट आने पर वो चिल्लाते नहीं, वो चिल्लाएगा नहीं, रोएगा भी नहीं, हंसते रहेगा। वृत्रासुर जी इधर हंस रहा है, मरने जा रहे हंस रहा है, मुख में हंसी। प्योर स्पिरिचुअलिटी चिल्लाएगा नहीं, कि किसी माँ बाप किसी को भी पुकारेगा नहीं, अपने को निंदा नहीं करेगा, अपना भाग्यों को भी निंदा नहीं करेगा, वरन भगवान के गुण कीर्तन करते रहता है, भगवान के गुण कीर्तन करता है। इतने कष्ट आने पर सोचता है कि भगवान की कृपा से मुझे थोड़ा से मिला है, ज्यादा कुछ मिलने वाला था। इतने कष्ट आने पर भगवान का जो गुण कीर्तन करता है, प्रशंसा करता है, भगवान को धन्यवाद देता है। इसी भय से देखा जाता है कि अपने जो इष्टों को, जो सेमी स्पिरिचुअलिस्ट थी, वो अपना कष्ट आने पर इतना डरते हैं, अपने कष्ट सब कष्ट में जब आ जाते हैं और देखते हैं, संसार में देखते हैं, यदि कोई इसी कारण से ये गीता पढ़ने के लिए या सुनने के लिए घर में रखने के लिए भी डर जाते हैं, रखने से कुछ हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, चाहे कुछ हो जाएगा। तो भगवान का नाम भी नहीं लेते। कुछ कुछ आदमी है, उसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने कहे बोलने के लिए तो कहा जाएगा, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, कुछ हो जाएगा, ये मंत्र उच्चारण करने पर कुछ हमारा अनिष्ट हो जाएगा। हर चीज में ये सेमी स्पिरिचुअलिस्टिक का ये सब दोष ऐसा रहता है। वो डर जैसा दोष भगवान के ऊपर डाल देते हैं, स्वयं करते हैं, सो भगवान के ऊपर डाल देते हैं। जैसा महाभारत में हम देखा है, धृतराष्ट्र अपना इच्छा से अपना परिवार को ना ध्वंस किया, लेकिन सारे दोष दे दिया कृष्ण को, ये कृष्ण ही मेरा वंश नष्ट कर दिया। तो गांधारी भी ऐसा ही दोष दे दिया। जब भगवान उनको कह रहे थे शांति दूत तो हो की जा की, उनके बाद कोई नहीं सुना, उनको सम्मान तक भी नहीं दिया, अरेस्ट करने के लिए भी उनके पीछे पड़ गए। फिर जब खत्म हो गए तो कृष्ण को दोषी मानते हैं। ये थोड़ा सेमी स्पिरिचुअलिस्ट का मेंटालिटी ऐसा लेता है, लेकिन जो प्योर स्पिरिचुअलिस्ट है, वृत्तासुर जैसा है, वो कभी ऐसा नहीं करते हैं। वो भगवान का गुण कीर्तन करते हैं, वो सब सारी चीज में भगवान की इच्छा के ऊपर निवार करते हैं। अगर भगवान किसी को नहीं मारते हैं, जीव अपना कर्म के कारण भगवान की इच्छा से सब होता है। भगवान सीधे सीधे किसी का जन्म मृत्यु में भागी नहीं है, उनका कर्म हिसाब से भगवान उनको ग्रांटेड करते हैं, सिर्फ सैंक्शन अथॉरिटी होता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं उनके एक गाने में, तुमी तो मारिबे जारे केतारे राखिते पारे, तब इच्छा बसो त्रिभुवन। तुमी तो राखिबे जारे केतारे मारिते पारे, सकल विधिर विधि तुमी।
इस भगवान ईश्वर जिसको मारने के लिए जाएंगे, चाहेंगे, मारेंगे, तो उनको कौन रक्षा कर सकता है? उनके सामने आकर उस आदमी को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई नहीं है संसार में, क्योंकि सारे संसार उनका बस में है, उनका कंट्रोल में है। वो सुप्रीम कंट्रोलर होते हैं, अथॉरिटी है। सब उनका निर्देश पालन करने के लिए सब बाध्य है। उनसे कोई बड़ा शक्तिशाली नहीं है उनको उनके साथ टकरा देने के लिए। इसलिए जब भगवान किसी को, जो सर्वशक्तिमान जो भगवान यदि किसी को मारने के लिए जाएंगे या मारेंगे, तो कौन है संसार में उनको बचा सकेगा उनका हाथ से? बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि तुम्ही तो मारी वे जा रे केतारे राखीते पारे तब इच्छा बसती बोना। ये भगवान की इच्छा से सारा विश्व कंट्रोल हो रहा है, उनका अधीन में सब काम करते। तुम्ही तो राखी वे जा रे केतारे मारीते पारे सकल विधिर विधि तुम्ही। आप जिसको रक्षा करेंगे, भगवान जिसको रक्षा करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, इच्छा करेंगे, इस संसार में कौन शक्ति, ऐसा शक्ति है जो कि उसको मार पाएगा? कोई नहीं मार पाएगा। ऐसा शक्ति नहीं जिसको भगवान अपना छत्र छाया में ढांक लिया है, आश्रय दे दिया है, अपन किसी चरण में आश्रय दे दिया है। ऐसा भक्तों को कौन है संसार, ऐसा आदमी जो शक्तिशाली आदमी है उनको मार सकेगा? बिल्कुल संभव नहीं। इस सभी का आश्रयदाता वही है। ये सारे विधि, ये सारे विधि का नियम बनाने वाले है भी वही है। कोई चाहे बड़ा भी पापी भी हो, वो जम दरबार भी जाना योग्य है। फिर जब भगवान इसको आश्रय दे देते हैं, वो भगवान का नाम कीर्तन कर देता है, तो उसको जमराज भी उसको लेने के लिए डर जाता है, उनके पास आते हैं। जैसा अजामिल का चरित्र में हो गया। जमील इतना बड़ा खतरा था, पापी था, लेकिन जब भगवान का नाम ले लिया तो सारा जो नियम उल्ट पलट हो गया, चेंज हो गया, तला धला हो गया। जो पापी अभी पुण्यात्मा बन गया, पुण्यात्मा का स्थिति प्राप्त कर लिया। नियम हिसाब से अजामिल जमपुर जाना ही ये योग्य था, अंतिम क्षण में भगवान का नाम ले लिया तो वो भगवान का कृपा का पात्र बन गया, सारे नियम चेंज हो गया। ये है सकल विधिर विधि तुम। सब भगवान, ये भगवान का जिसको रक्षा करने के लिए चाहेंगे उनके पास है। वो चाहे बड़ा खतरा पापी हो, जितने जघन्य पापी भी हो, तो भगवान इसको बचाने के लिए चाहेंगे तो उनके कोई रोकने के लिए, कोई बोलने के लिए, कंप्लेन करने के लिए नहीं है। ये तो ऐसा है वास्तव में। मृत्यु संसार में जो कष्ट सब आते हैं, इस भगवान की इच्छा से होता है। अपना कोशिश करने से कोई उसको नहीं टाल पाएगा। ये जो कि सत्य है, जो है जीवन का अंतिम सत्य है। इधर जो डिवोटी भूतासुर का ऐसा ही पोजीशन, जो कि बैटल फील्ड में अभी अभी उनका एक हाथ भी चल गया। इंद्र ने वज्र में उनका एक हाथ काट दिया है। लेकिन ये जो दुख, ये दुख को भूतासुर क्या समझता है? जैसा जन्म, जीवन, मृत्यु, सुख दुख, रोग निरोग, शोक अशोक, भय निर्भय, समृद्धि निपात, धनी दरिद्रता, जन्म मृत्यु, जस अपजस,
हार जीत, ये जो सारे चीज जो प्योर डिवोटी होते हैं, उनके सामने क्या है, वो सब को भगवान की इच्छा ही समझते हैं। ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये सब टेम्पोररी है, ये कोई परमानेंट नहीं है। जैसे शीतो उष्ण सुखो दुखोदा, ये शीतो उष्ण जैसे आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चला जाते हैं, इस प्रकार ये जो संसार का जो सुख दुख, ये जो सारे जो स्थिति है, ये सब टेम्पोररी है, कुछ परमानेंट ही नहीं है। इधर ये सब परमानेंट चीज नहीं है, ये सब आएगा ही जाएगा। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। ये सब, ये सत्य है, ये सब आते रहेगा फिर जाएगा। ये जो जन्म लिया है उनका मृत्यु भी, परा जन्म भी परमानेंट नहीं, टेम्पोररी जन्म बार्थ, ये टेम्पोररी बार्थ। और जो मर जाता है उनका डेथ, उनका डेथ भी टेम्पोररी है, वो फिर जन्म लेना पड़ता है। ये सब टेम्पोररी चीजें, जगत टेम्पोररी का वर्ल्ड है, इधर कोई परमानेंट चीज नहीं है, जो कुछ सब इधर चल रहा है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं जैसे उषा चोर जी जैसा, वो सब इसमें विचलित नहीं होते। वो अपना जो मन वचन शरीर ध्यान पूरा भगवान के पास दृढ़ भाव से रखते, हर समय में अच्छी समय में पूरे ठीक ठाक समय में, जैसा उनका दिमाग सब कुछ भगवान के पास रहता है, इतना विपद परिस्थिति में भी उनका जो दिमाग, जो चेतना मन सब कुछ भगवान के पास ही रहता है, कभी इधर उधर नहीं हिलता है, पूरा स्ट्रेट रहता है, भगवान के पास रहता है, दूसरे की ओर नहीं चला जाता है, विचलित नहीं होता है। तो भक्तों को मालूम है कि ये सब चीज से परवाह नहीं है, ये सब सुख दुख है। लेकिन ये सब कृष्ण भक्ति के कारण सबको, तो गीता में सब तो पढ़ते हैं, जन्म मृत्यु ये सब आएगा जाएगा, लेकिन तो फिर ही हम तो इसको परवाह नहीं मान लेते हैं। इतना मोहित हो के रहते हैं संसार में सारे आदमी, इतना तक विश्वास नहीं आता है गीता में सुनने के बाद भी। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युस्य शीतोष्ण सुखदा आगमा पाई ननित, इतने शिक्षा करने पर भी, सुनने के बाद भी हमारा ये विश्वास नहीं होता है कि उसको परमानेंट मान लेते हैं। सोचिए, इसको टेम्पररी वही समझ सकता है जो भगवान की ओहित की कृपा को आश्रय किया है, भगवान की इच्छा के ऊपर जो निर्भर किया है, जो भक्त है, भगवान की इच्छा सब कुछ हो रहा है संसार में, जो कुछ हो रहा है सर्व कारण से कारणम, जो कुछ हो रहा है सब जो भगवान के ऊपर छोड़ देता है, वो उसमें वही समझ पाएगा, वो उसमें विचलित नहीं। जो ऐसा जो आदमी ऐसे अपूर्ण आध्यात्मिक स्थिति में अपना शरीर छोड़ता है, भगवान का नाम गुण कीर्तन करते करते, वृतासुर जैसा अभी आगे जाके शरीर छोड़ेंगे, एक हाथ अभी चला गया, वो भी फिर ये मुख में भगवान का गुण कीर्तन कर रहा है। इतना कष्ट, कष्ट से भी भगवान का गुण कीर्तन कर, मुख में आओ कुछ नहीं, दूसरा बात कुछ नहीं, हाथ चला गया कोई भी परवाह नहीं, सिर्फ भगवान का गुण कीर्तन कर रहा है। बाद में इंद्र दो हाथ दो भुजा भी काट देगा, फिर भी वो भगवान का गुण कीर्तन करते रहे। इतना जो शक्तिशाली थे वृतासुर, क्योंकि शुद्ध भक्ति के कारण
उनको जो भौतिक जगत का जो क्लेश, जो कष्ट, वो कभी अनुभव नहीं कर पाता था। शारीरिक भाव से इतना कष्ट आ रहा है, फिर भी वो थोड़ा-सा उनका अनुभव भी नहीं हो रहा है। उनका हँसता है, भगवान का नाम कीर्तन करता है, भगवान का गुण कीर्तन करता है, धन्यवाद देता है भगवान। जिसका चेतना सब कुछ भगवान के पास समर्पित तो हो गया है। ये भक्ति जैसे एक ध्यान जोगी, ध्यान में बैठते हैं। जो ध्यान में जोगी लोग बैठ जाते हैं, वो बाह्य जगत का कुछ अनुभव नहीं कर पाते। उनको बुलाने पर वो भी सुनते नहीं। जैसा परीक्षित महाराज जी स्वामी गुरु जी को बुलाया, थोड़ा पानी के लिए नहीं सुन पाया, क्योंकि वो समाधि में लीन हो गए थे, भगवान के चरण में अपने मन को रख दिए थे, इतना स्थिर कर दिए थे, तो बाहर का आवाज भी उनको कान में नहीं घुस रहा है। इस प्रकार जो भगवान की सेवा में जो भक्त हमेशा लग रहा है, कांस्टेंट भगवान के पास जैसा रहना, जैसा ऐसा ही सेवा करते, उनका गुण कीर्तन करते, श्रवण करते हैं, तो उनका जो चेतना मन इसी भाव से 100 to 100% भगवान के पास समा रहता है, युक्त रहता है, तो वो बाहर का जो क्लेश है, बाहर का आवाज कुछ नहीं अनुभव कर पाते। ये शारीरिक भाव से ये बाहर का जितने सब समस्या है, उनका अंतरात्मा तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसा स्थिति होता है। शुद्ध भक्त का जो स्थिति ये है, तो कभी घबरे नहीं जाते, कष्ट पर भी भगवान को ही पुकारते, उनके ही गुण कीर्तन करते। देखा जाता है जो चैतन्य चरितामृत में एक जो विप्र, जिनका हाथ में वासुदेव विप्र जी भगवान के भक्त थे, किसी कारणवशतः इनका शरीर में गलित कुष्ठ हो गया था, इसी से कीड़ा भी हो गए थे। पिछली समय में तो जो कुष्ठ रोग, लेपर्सी बड़ा भयंकर ही व्याधि था, अभी तो समाप्त हो गया है। तो ऐसा ही हो गया था, फिर भी वो मुख से भगवान का नाम भी कभी नहीं छोड़ा। और जो कीड़े नीचे गिर जाते थे, फिर उनको अपने खेत के जगह में रख देते थे। जब आ जाएगा तो मर जाएगा, क्या खाएगा। वो जो शारीरिक स्थिति में भक्त इतना स्ट्रांग हो जाते, शारीरिक का थोड़ा सा कष्ट को भी ध्यान नहीं देते कि उनका मन इतना भगवान के साथ तल्लीन रहता है, ये शारीरिक कष्ट भी अनुभव नहीं कर पाते, और वो दूसरे को क्लेश भी देने के लिए भी कोशिश ही नहीं करते। दुख के कारण, दुख के वजह से आदमी दूसरे को भी क्लेश देते हैं, गाली देते हैं, कुछ कुछ करते हैं, दूसरा का हानि पहुंचा देते हैं। तो ये भक्त कभी ऐसा नहीं करते, अपना स्थिति में पूरा स्थिर रहता है, भक्ति भाव। इसी हिसाब से हम देखेंगे, ये जो भीष्म पितामह, भीष्म पितामह अभी सरसज्जा में सहित है, अर्जुन ने उनको सरसज्जा में सुला दिया, तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। इतने सब सरे सर का सज्जा के ऊपर सो रहा है, इतने तीखे तीखे सब बाण उनका शरीर में घुसा है, फिर भी मन में थोड़ा सा दुख नहीं। जब उनका अंतिम क्षण में महाभारत युद्ध का अंत में सारे पांडव, कृष्ण सब उनको दर्शन देने के लिए गए हैं, उस समय में सारे मुनि ऋषि भी उनके पास आ गए, क्योंकि एक है जो महात्मा भीष्म पितामह जी की महाजन, अभी उनका अंतिम क्षण है, सबको मालूम हो गया कि अभी शरीर छोड़ने वाला है, तो सब उनके पास आ गए, इकट्ठे हो गए। तो भगवान स्वयं भगवान उनको दर्शन करने देने के लिए जा रहा है पास में, जो मरने जा रहा है भीष्म पितामह, उनको दर्शन दिलाने के लिए स्वयं कृष्ण उनके पास जा रहा है। ये भीष्म पितामह कितने बड़े योद्धा थे, क्षत्रिय थे,
लेकिन उनका दिमाग ऐसा ही भगवान के पास था, वो हमेशा दिव्य आनंद सिंधु में डूब कर रहते थे। इस सरस सज्जा में रहते हुए भी इन आनंद का दिव्य आनंद अनुभव करते थे। क्योंकि ये जो युद्धों में जो कुछ हो रहा है, उनको मालूम है जी, ये सब ये वासुदेव श्री कृष्ण की इच्छा से ही सब हो रहा है। जो कुछ मरते हैं, जो वासुदेव कृष्ण से इच्छा से ही मरते हैं। वो पूर्ण ज्ञान था, ज्ञान तो था उनको, सब मालूम है युद्ध का समाचार क्या हो रहा है। तो अंतिम में जो कृष्ण गया उनके पास दर्शन देने के लिए, तो अंतिम क्षण में वो भगवान का गुण कीर्तन करता है। सर का सज्जा का ऊपर शयन कर रहा है, फिर भी भगवान का गुण कीर्तन करता है। अत्यंत भक्ति भाव से, सुंदर सुंदर भाव से भगवान का गुण कीर्तन करते रहता है। तो कई श्लोक में विष्णु पितामह जी भगवान की गुण कीर्तन किया है। हम एक एक श्लोक को पाठ करेंगे। तथापि एकांत भक्तेषु, तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं जन्मेंशुं त्यज्य साक्षात कृष्ण दर्शन आगतः। विष्णु पितामह जी कह रहा है, अपने एकांत भक्तेषु, जो अपने एकांत भक्त होते हैं, उनको कृपा करने के लिए, उसी जीवों को कृपा करने के लिए भगवान इसमें पितामह कह रहा है कि जब मैं जब अभी जो ये शरीर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, जब मैं अंशुष त्यजतः, जब मैं ये शरीर छोड़ने जा रहा हूँ, वो साक्षात कृष्ण दर्शन आगत, तो साक्षात स्वयं कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये मुझे दर्शन दिलाने के लिए स्वयं आ गया है। इतना इतना जो मैं इतना अधमा हूँ, छोटा हूँ, इतने छोटे आदमी के पास स्वयं ये विश्व आ गया। तो भगवान का गुण कीर्तन करता है, सुंदर सुंदर ढंग से भगवान का कई गुण कीर्तन किया है विष्णु पितामह। इतना कष्ट पर भी सर के तीखे तीखे बाण के ऊपर सोते हुए भी वो भगवान का नाम गुण कीर्तन करता है। ये भक्त का स्थिति के बाद युधिष्ठिर महाराज को विभिन्न धर्म नीति भी शिक्षा दिया है। युधिष्ठिर महाराज पूछने पर उनको भिन्न भिन्न का धर्म नीति भी सब शिक्षा दिया है। भगवान का नाम गुण कीर्तन करते करते, भगवान को आंख में दर्शन करते करते, नीति शिक्षा देते देते भीष्म पितामह अपने शरीर छोड़ दिया। ये कितने यशस्वी मूर्ति है ये सब, वास्तव में ये सब यशस्वी मूर्ति है। अरे हम देखेंगे चिंतन चरितामृत में भी आता है, इसको कई भक्त का किस किस का मृत्यु को हम यशस्वी मृत्यु कह पाएंगे। इसी के संबंध से हम चर्चा करते हैं, क्यों वृत्रासुर का मृत्यु को यशस्वी कहा गया, किसी मृत्यु को यशस्वी कहा जा सकेगा, ये हम चल रहा है। अभी देखिए जो हरिदास ठाकुर जी, हरिदास ठाकुर को, जो नवाचार्य हरिदास ठाकुर भगवान के प्रिय भक्त है, जब उनको पता चल गया कि अभी चैतन्य महाप्रभु ने अपना लीला समाप्त करने के लिए जा रहा है, तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बोला कि मैं ये सब सहन नहीं कर पाएगा, मैं आगे चला जाएगा। इसी कारण से हरिदास ठाकुर एक दिन स्वयं सुस्त अवस्था में, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है, चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में ये सब बात लिखा है। जब अंतिम समय हो, अंतिम समय हुआ नहीं, स्वयं अंतिम समय तक चला गया हरिदास ठाकुर, महाप्रभु चला जाएगा, हम तो नहीं रह पाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु को अपना सामने में बैठा लिया हरिदास ठाकुर ने। अब क्या क्या ना,
भगवान की मुख पद्म में कौन बैठता है ना, भृंग जो भंवरा, अपना दो नेत्र भृंग, जो दो नेत्र रूप को जो भ्रमरा है, उनको भगवान की चरण का ऊपर बैठा है, भगवान के मुख पद्म में बैठा लिया, और अपना हृदय में भगवान की चरण को धारण कर लिया, अपने मस्तक में सारे वैष्णव जनों का पद रेणु विभूति मस्तक में भूषण किया, मुख में भगवान की चैतन्य महाप्रभु का रूप का माधुरी पी रहा है, आंख से प्रेम का अश्रु बह रहा है, मुख में जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य पुकारते पुकारते नाम के सहित अपने प्राण को विसर्जन कर दिया, नाम में अपना प्राण समा लिया। ये है वास्तव में। हरे कृष्णा महाराज जी। हाँ, टाइम हो गया। हाँ। तो ये मृत्यु को हमें कह पाएंगे ग्लोरियस डेथ, क्योंकि मृत्यु के समय में जो भगवान के नाम पुकारता है, ये अब एक 5 मिनट थोड़ा ले जाएंगे, 10 मिनट रखेंगे, तो ऐसा मृत्यु को हम ग्लोरियस मृत्यु ही कहेंगे, जो मृत्यु के समय भगवान का नाम कीर्तन करते। इसी हिसाब से हम देखेंगे हमारे जो सोसाइटी का जो फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, जब उनका अंतिम क्षण में आ गए, तो अपने शिष्य लोगों को भागवत प्रवचन देते देते दे 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 कर लेट कर सज्जा में लेटा है, अंतिम समय आ गया, फिर भी उनका मुख से जो दिव्य भागवत अमृत, जो ट्रांसेंडेंटल वर्ड, ये सब प्रवचन ये चलते रहता था, उनके निश्वास के साथ ये भी चलता रहता था। प्रभुपाद जी का निश्वास बंद हो गया तो प्रवचन स्टॉप। इतना कितने बड़े महात्म्य है, भक्त लोग को प्रवचन देते देते अपना प्रवचन स्टॉप, शरीर छोड़ दिया। इसे देखा है तो और एक आचार्यों का देखेंगे हम, गुरु गोविंद परम पूज्य गुरु गोविंद महाराज, वो नित्यानंद त्रयोदशी के बाद में गए थे मायापुर जीबीसी मीटिंग में अटेंड करने के लिए। एक दिन संध्या आरती के बाद अपने रूम में बैठे हैं, भक्त लोगों को हरि कथा कह रहा है, शरीर छोड़ दिया, कुछ नहीं। ये सो दिव्य महात्मा लोग का ये जो शरीर त्याग वास्तव में यशस्वी मृत्यु है, जो भगवान के नाम कीर्तन के साथ शरीर छोड़ देते हैं। देखेंगे इसी हिसाब से हमारे भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी श्रीपाद महाराज, जो वो स्वयं अपना भगवान की ये प्रचार कर, अपने प्रचार में अपना जो सारा जीवन, प्रभुपाद की जो वाणी, दिव्य वाणी प्रचार में अपना जीवन को उसी में ही छोड़ दिया, समाप्त कर दिया। अपने कार्यालय में अपने शिष्य लोगों को उपदेश देते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते करते अपना शरीर को छोड़ दिया, भक्त के साथ, सारे शिष्य लोग के साथ ऐसा शरीर छोड़ दिया। उसी दिन भी तिथि, कितने पवित्र तिथि फिर था, विजयादशमी, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण काल, गीता के हिसाब से इतने सब स्थिति शुभदायक सब स्थिति था। ये सब महात्मा लोग जो ऐसा ही शरीर जो त्याग करते, जो महात्मा लोग, जो भक्त लोग, वास्तव में उनका मृत्यु इसलिए ग्लोरियस डेथ है, इसलिए उनको कहा जाता है, क्योंकि ये सब मृत्यु ग्लोरियस डेथ है, ये मृत्यु नहीं है, साधारण मृत्यु नहीं है, ये मृत्यु नहीं है उनका ये शरीर परिवर्तन मात्र है। ये शरीर उनका जो परिवर्तन है, ये वास्तव ये उनका वो ये शरीर नहीं है। इसी विचार से उनका मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा जाता है। वो दिव्य आत्माएं हैं, जो शारीरिक स्थिति में है, वो शारीरिक कष्ट समस्या में, वो तो शरीर चेतना में रहेगा ना। जो शारीरिक चेतना में जो नहीं है जो आदमी, उसका मृत्यु को कैसे हमें मृत्यु कहेंगे ना, मृत्यु नहीं है।
वो जो शरीर नहीं है उनका मृत्यु कैसे आएगा? जो शरीर है उनका मृत्यु है, जो शरीर नहीं उनका कैसे मृत्यु? जो प्योर डिवोटी होते हैं वो शरीर नहीं, वास्तव में ये सब आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, भगवान की भक्त है। ये शरीर त्यागने का सब विधि है, दो विधि है, शुक्ल और अंधार, दो विधि है। जो भीष्म पितामह तो ही जो शरीर त्याग किए थे इसी समय को अपेक्षा किया थे, करके सरसजिया में लेट रहे थे, कब आएगा सूर्य, सूर्य का उत्तरायण 6 मास के अंदर में जो शरीर त्याग करते, अग्नि ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जो सब ब्रह्म अर्थात भगवान को जो जानते हैं, जो महात्मा लोग, वो कैसे किसी समय में शरीर त्याग करते हैं। भगवत गीता 8वें अध्याय में कहा गया है, अग्निदेव का प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ किरण में, शुक्ल पक्ष में, सूर्य उत्तरायण में जब रहता है, ये 6 मास के अंदर में वो शरीर सब छोड़ देते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो शरीर त्याग करने का जो दो विधि है, जो शुक्ल और अंधार है, शुक्ल कृष्ण गति रहता जगत सरस्वती मत है, एकया जानती अनावृतम अन्या आवर्तते पुनः। एक मार्ग में प्रत्यावर्तन है, दूसरे मार्ग में प्रत्यावर्तन नहीं है। किसी मार्ग में जब वो शरीर आदमी अंधार में शरीर त्याग करता है उनका प्रत्यावर्तन होता है, और जो दिन में या शुक्ल पक्ष में शरीर त्याग करते हैं उनका प्रत्यावर्तन नहीं होता है। लेकिन ये जो नियम है वास्तव में ये सारे नियम उस भक्तों के लिए नहीं है, जो भगवान की भक्त है। ये जो शरीर त्याग करने का जो जो विधि है वो उनके लिए नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखा है इधर एक प्रपोट में, जो जोगों में सीधो जोगी अपने शरीरों को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इसी पर कोई बस नहीं रहता, जो जोगी नहीं है। यदि संजोग बस ये शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र से लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वो शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात हो, चाहे व्यवस्था अनुसार हो, चाहे रात में हो, चाहे दिन में हो, या स्वेच्छापूर्वक हो, जैसे तैसे यदि भक्त शरीर त्यागता है तो उनका प्रत्यावर्तन नहीं है। इसीलिए जो भक्त का मृत्यु वास्तव में दिव्य मृत्यु है, ग्लोरियस मृत्यु उनको ही कहा जाएगा। जो भक्त का मृत्यु वास्तव में जो भक्ति भाव से, भक्त हिसाब से जो शरीर त्याग करते, कृष्ण भक्त हिसाब से जो शरीर त्याग करते, उनका मृत्यु वास्तव में ग्लोरियस डेथ है। उनका मृत्यु को मामूली लोगों का जैसा मृत्यु नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो भक्त है, उनका शरीर वो नहीं है। जो भक्त है वो शरीर नहीं है, वो दिव्य आत्माएं होते हैं। इसी हिसाब से ये अध्याय को हम अभी हमारा बचना समाप्त करता हूँ। किसी का कुछ संदेह है तो हम कुछ छोड़ दिया, तो कोई कुछ जोड़ने है तो महाराज जी लोग कुछ बोल सकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। दंडवत प्रणाम महाराज। बहुत अच्छे बोले हैं कि कैसे हमारे भक्त लोग जो है कैसे शरीर छोड़ते हैं और शुद्ध भक्त लोग कैसे। मेरा एक प्रश्न है, आप कोई बुरा मत मानना।
तो हमारे गौरगोविंद महाराज के बारे में जब आप बोल रहे थे, हाँ हाँ आप बोल रहे थे परम पूज्य गौरगोविंद महाराज जी, हाँ हाँ जब गुरुवास के बारे में बोल रहे थे, आप बोल रहे थे फाउंडर डायरेक्टर समथिंग लाइक दैट, परम पूज्य मिसिंग है उधर। हाँ मिसिंग है। बोलते बोलते रह गया शब्द। क्या है, वैसे हो प्रभुपाद जी गया की ऐसा ही या बोल दिया, नहीं बोल पाया। कोई श्रीपाद कोई कम है क्या? नहीं, बोलने के समय सब स्लिप हो जाता है ना। सब वर्ड्स स्लिप हो जाते हैं, महाराज क्षमा करेंगे। ठीक है, कर लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Yeah. So I would like to share some thought that is coming to my mind. Recently we have celebrated the first Punyatithhi of Sitanath Prabhu. I have seen such a great personality who share a lot of divine qualities that we are discussing here in this chapter of Vritasir. Like till before the moment, his thoughts are always hankering for serving Sripad Maharaj, and at some point he came to know that okay, my time has come. It is like receiving a call. So all of a sudden it happened overnight. Like so, till fifth night we were discussing about service, and sixth morning he said, my time has come, and okay, I'm supposed to leave. I am leaving. So yeah, there are great devotees even among us, in Bhaktivedanta Institute. So we have to take their association, and we are very fortunate to have association of such a wonderful people. Hare Krishna. Yes, Balaramji. हरे कृष्ण। शरीर छोड़ना है तो हरे सब कृष्ण महाराज ऐसा ही जी, शरीर छोड़ना। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुन रहे हैं मुझे? हाँ हाँ तो सुनाई सुनाई देता है। है? हाँ हाँ हरे कृष्ण अच्छा, ओके। प्रभु जी। तो मेरा प्रश्न है, साइलेंट साइलेंट। हाँ हाँ मेरा प्रश्न है कि हाँ प्रभुपाद ने जो गॉड है उनका 10 हाथ होता है, हाँ। तो 10 हाथ तो हमारा 10 डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है या क्या होता है? हमारा जो प्रभुपाद इसको गॉड होते हैं या गॉडेस हाँ, तो भगवान की 10 हाथ है, 10 भुजा है। प्रभुपाद जी लिखा है परपट में, जो भगवान 10 भुजा में देने के लिए चाहेंगे किसी 10 मतलब 10 डायरेक्शन पूरा 80 डायरेक्शन में 8 हाथ, 80 डायरेक्शन से आएगा, फिर ऊपर से नीचे से आएगा 2 डायरेक्शन, तो हर डायरेक्शन फिलअप हो गया। हर डायरेक्शन उसका अर्थात हर डायरेक्शन, यदि डायरेक्शन में यदि भगवान कृपा करने के लिए चाहेंगे किसी को, तो उसको कौन कितना ग्रहण कर सकता है, स्वीकार कर सकता है? 2 हाथ में कितना स्वीकार करेगा? 10 डायरेक्शन है, ऊपर ऊर्ध्व अधो। इसी से प्रभुपाद उनको वर्णन किया है। भगवान की 10 हाथ है, जो 10 हाथ में ऐसा देने के लिए, तो बंगाल का एक पो भर है, प्रभुपाद जी बोला, ये बंगाल का एक कहावत है, ऐसा ही कहते आदमी। तो भगवान 10 भुजा में देंगे तो 2 भुजा में वो आदमी कितना खर्चा करेगा? यदि 10 भुजा में ले जाने छीन लेने के लिए कोशिश करेंगे तो आदमी उसको कैसे रख पाएगा? ये बात मैं बोला प्रभुपाद जी। भगवान की जो विशेष कृपा का बारे में बोलने के लिए ये बंगाल का ये बात प्रभुपाद जी बोला है इधर। थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Yeah.
Anyone else is having any question, they can raise the hand and ask His Holiness Bhakti Vishal Swami Maharaj Ji. ठीक है महाराज जी, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, हम आज के लिए कंक्लूड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जय वृतासुर ग्लोरियस डेथ की। जय श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्री श्रीपाद गुरुदेव महाराज की जय। महाराज जी वृंद की जय। वस्तुत वैष्णव वृंद की जय। जय गौर नित्यानंद कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी राधा कृष्ण चंद्र की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। His Holiness Bhakti Vishal Swami Maharaj ki jai. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Thank you one and all for joining. See you all in tomorrow's class.